চাকুলিয়া টাইমসে আপনাদের স্বাগত। আসুন বিস্তারিতভাবে সব দেখে নিই। এর আগেও কংগ্রেসকে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু জিতে গরু ছাগলের মতো বাজারে বিক্রি হয়ে গেল। আমাদের কথা শুনল না, তার নাম নিতে চাই না। তিনি বলেন, আশীর্বাদ করার মানে বাজারে বিক্রি হওয়া নয়। ইসলামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সম্পর্কে পরোক্ষ শুক্রবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে আয়োজিত ইসলামপুর বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার সাদিকুল ইসলামের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় এমনই বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, অনেক চিন্তাভাবনা করে এবার এই প্রার্থীকে নির্বাচন করেছি। আপনারা আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করবেন। সাম্প্রতিকতা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, বাংলার মুসলমান চাইনি ইমাম ভাতা, মেয়াজ্জেম ভাতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের খুশি করতে চেয়েছিল। এভাবেই গত 10 বছরে মুসলিমদের চাকরি হয়েছে মাত্র 1.5%, অথচ তাদের জন্য 9% বরাদ্দ। এদিন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ে সরব হয়ে ওঠেন তিনি। অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরও বলেন, কখনো মুসলিমদের আবার কখনো হিন্দুদের হয়ে কথা বলেন। অন্যদিকে ইসলামপুরের জন্য কিছু কাজ আছে। সাদিকুলের বড় দাদা আমি দিল্লিতে রয়েছি। এখন থেকে সাদিকুল বলেন, আমি দিল্লি থেকে তা করব। তিনি বলেন, ইসলামপুর পৃথক জেলা হোক, এখানে মহিলাদের কলেজ বানানো হোক আমাদের লক্ষ্য। এখানে ডাঙ্গাপাড়া সেতু তৈরি হবে। প্রিয়রঞ্জন দাদা মুন্সির এইমসের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে আবার সেই হাসপাতাল ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলার সংযুক্ত মোর্চা আসবে বলে দাবি করেন তিনি, কারণ এখন এর তেজ বাড়ছে ক্রমশ। লকডাউনের জন্য বাংলার মানুষ এবার ন্যায় যোজনার সুবিধা পেতে চলেছে। হিন্দুস্তানের গরিব মানুষের জন্য এই উদ্যোগ রাহুল গান্ধীর। প্রতি মাসে 5,700 টাকা করে সহায়তা করা হবে বাংলার সংযুক্ত মোর্চা ক্ষমতায় এলে। এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল সুপ্রিমের হিন্দু মুসলিমের রাজনীতি নিয়েই তিনি বারবার আলোকপাত করেন। প্রার্থী ডক্টর সাদিকুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ে এক হাত নেন। বিরোধীদের ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সম্পাদক পবিত্র চন্দ্র, জেলা সিপিএম নেতা স্বপন গুহ নিয়োগী, ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মুজাফফর হোসেন, সম্পাদক সুদীপ দত্ত আর এসপি নেতা জহির উদ্দিন, সিপিএম নেতা পবন যাদব, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমরুল হক। पेश करने का पहले ही मैं थोड़ा आप सबसे सभा करना पड़ता, इसलिए मेरा गला की खराबी को आप क्षमा कीजिएगा। आज আমাদের এই সভায় উপস্থিত এই এলাকার সর্বস্তরের আমার গুরুজন ব্যক্তিবর্গ, আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা একটু আগে আমাদের প্রার্থী সাদিকুল ভাইয়ের বক্তব্য শুনলেন। একটা তেজ, শক্তিশালী, हिम्मतवाला একটা प्रार्थी আমরা নিয়ে এসেছি। हमारे उम्मीदवार एक ईमानदार आदमी है, एक नेक इंसान है और वो अपने नियत साफ सुथरा रख के चलने का लायक है। इसलिए हम इनको इस बार यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए संयुक्त मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किए हैं। आपने এর আগেও কংগ্রেসকে আপনারা সাহায্য করেছেন। আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের দোয়াতে এর আগে এই ইসলামপুরে আমরা আমাদের জোটের প্রার্থী জিতিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই জোটের প্রার্থী গরু ছাগলের মতন বাজারে বিক্রি হয়ে গেল, আমাদের কথা শুনল না। बकरी की तरह ये हमारे पार्टी के पिछले बार जो चुनाव में जीते हुए शख्स थे, उनके नाम
आप सबको जानकारी है, मैं उनका नाम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन बाजार में जाकर भेड़ियों की तरह जो आदमी अपने को बेच डाला और बंगाल में आप लोग देख रहे हैं कि खरीद फरोख्त की जो सियासत ममता बनर्जी शुरू की थी वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। आप लोग चुनाव में किसी को दुआ करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बाजार में बिक जाए बाद में। तो ये जिस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति यहाँ से भागकर अभी रायगंज चले गए थे दोबारा उम्मीदवार होकर और चुनाव जीतने के लिए, मैं उनकी बारे में आप लोगों को कहना नहीं चाहते ज़्यादा, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं। आप लोगों को समर्थन लेने के बाद खुद को जो बेच डालते हैं, उनके ऊपर आम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये जरूर सोचेंगे कि इस बार ऐसा तो नहीं होगा ना, हमने इसलिए दोबारा ये गलती हमारी तरफ से ना हो, क्योंकि पिछले बार भी हम यकीन किया था कि बंगाल में कभी उम्मीदवार को लेकर, कभी चुने हुए नुमाइंदों लेकर बाजार में कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं हुई थी। लेकिन जब ये पता चला कि बंगाल में खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो चुके हैं, जिस खरीद फरोख्त की राजनीति आज बीजेपी पार्टी अपना रहे हैं टीएमसी से सीख के बाद बंगाल में, तो उससे बचने के लिए हम ये चुने हुए बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद हम ये उम्मीदवार लाए हैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम। ये आपके सामने ऐसे इंसान को खड़ा करूंगा जिनको वेस्ट बंगाल के रॉबिन हुड बोला जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गरीबों का मसीहा कहते हैं, यानी श्री अधीर रंजन चौधरी, जो हमारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जब से वो राजनीति में आए हैं तब से लेके अभी तक उनकी बादशाहत, उनकी सल्तनत, उनकी साम्राज्य बड़ी बड़ी ताकतों आए और हिला नहीं पाए, उनका नाम है श्री अधीर रंजन चौधरी। तो मैं आपको सिर्फ एक शेर पढ़ के उसका मतलब समझा के चला जाऊंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। अरे हमने एक दीप जलाई है हवाओं के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है अंधेरों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है ये नाइंसाफियों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है ये बेईमानों के खिलाफ, हमने एक चिराग जलाया है ये करप्टेड लीडरों के खिलाफ। तो मेरे हमरा चलो, मेरे हिम्मत को सराहो, हमने एक चिराग जलाई है इन हवाओं के खिलाफ। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आप जानते हैं कि आज जो संयुक्त मोर्चा की जरूरत पड़ी है वेस्ट बंगाल की सरजमीन पे, क्यों पड़ी है? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि दो सरकार है, एक केंद्र में सरकार है बीजेपी की और एक राज्य में सरकार है आपके तृणमूल की। ये तृणमूल और बीजेपी की सरकार कोई अलग अलग सरकार नहीं है। ये बोलते ना मामा भागना वाला खेल है, दियर भाव वाला खेल है, इधर के लोग इधर जाते हैं, इधर के लोग इधर जाते हैं। यानी अभी जो विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट है उनमें से 70 लीडर जो है वो टीएमसी से जाके टिकट लिए हैं। तो इन लोग की आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस में सेटिंग है, ये आपको समझना पड़ेगा। और केंद्र की जो मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार के बारे में आपको मालूम होगा 2014 से पहले मोदी सरकार ने बहुत सारे वादा दिए थे, बहुत सारे सपने दिए थे, बहुत सारे भाषण दिए थे, लेकिन जमीन पे कुछ नजर नहीं आया, बल्कि उन्होंने देश की जनता को उलझाने का काम किया है, देश की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, देश की जनता को गरीब करने का काम किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप मुझे खुद बताओ,
मोदी सरकार ने कहा था, आने से पहले मोदी जी ने बोला था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, किसी को रोजगार नजर आई नहीं आई। आपने कहा था कि मैं महंगाई को कम कर दूंगा, जो कांग्रेस पीरियड में 350 का गैस सिलेंडर मिलता था आज 1000 के पार चला गया। जो पेट्रोल डीजल का दाम 55 रुपया 60 रुपया था वो 100 के आंकड़े पार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी दूंगा, किसी को एक स्मार्ट सिटी भी नजर आई नहीं आई। उन्होंने कहा गंगा मैया को साफ कर दूंगा, वो क्या किसी को नजर आई नहीं आई, बल्कि उल्टा देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का जोर दिया, बल्कि बेरोजगारी ला दिया और देश की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी ऐतिहासिक प्लेसेस के, उनको बेचने का काम किया, ONGC को बेचने का काम किया। तो मेरे दोस्तों, मोदी जी और अमित जी और योगी और भोगी जी जो आपको हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, तो आप बताओ कि आप जो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं कि मोदी जो हमें हिंदू हिंदू कर रहा है, ये हिंदुओं का राजा है, ये हिंदुओं का नेता है, ये हिंदुओं का लीडर है, लेकिन नहीं, कसम खुदा की बोलता हो, डंके की चोट में बोलता हो, न वो हिंदू का है, न मुसलमान का है, न यहूदी का है, न ईसाई का है, न गरीब का है, न लाचार